Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम I am Sayyida Alina Malik and I have studied in Kuba Public School. And this year in SSLC examination I have secured 92%. And my goal is to become a doctor. And I am looking for PCMB in first place. आज जो इसको में आए हैं आपको जो है आपकी इज्जत अफजाई की है, आपकी हिम्मत अफजाई है, इसके लिए आपका क्या है? I want to thank the management of MESCO, and I'm really happy to attend this function here. And here the career counseling that teachers have done here, it was very helpful to me, and this will be helping me to decide a right career for me. What's your name? Assalamualaikum. My name is Hina Kausar. I have studied in MESCO High School. This year I have secured 85% in 10th standard, and my goal is to become IAS officer. And now I am looking to become. I'm looking to take PCMB science in PUC. Assalamualaikum. My name is Shafia Khanam. I am from MESCO High School. I have scored 85%. Inshallah. Before your exam, Star Academy, they are giving you best opportunity to bring out your whatever the performance is. So how will it help you? Alhamdulillah, it will help me it helped me to choose my career. I don't know. So what do you want to be teacher? Inshallah, doctor. I am Muskan Banu from Al Karim School. Today I am here because I have secured 85%. I am very happy. In future I want to take more marks. Inshallah I will do that. I am Afif Anas from RGA High School. I have secured 86% in SSLC examination. My goal is to become a doctor. This career guidance program helped me to choose my career. I am very thankful to the management. So how about your family? What is your father doing? My father is a furniture manufacturer. Okay. He has some dreams about you. So you are fulfilled that. Inshallah. Khatija, I am studying in 10th standard. I am from KPS Rajendra Nagar Public School. I achieved in SSLC 87% result. I want to become a doctor. Mohtar from BTL Vidyavahini High School, and I have secured 85% in SSLC, and I want to become an engineer. MESCO Academy ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Yes sir. Career guidance ಗೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. Hello everyone, my name is Sandra. I studied in BTL Vidyavahini High School. I have secured 90%. My goal is to become an engineer. Thank you. My name is Afrin. I am from BTL Vidyavahini School. I have secured 90% and my ambition is to become a doctor. And I thank MESCO for giving me this award. Thank you so much. My name is Noor Madiha from BTL Vidyavahini. I have secured 85% in the SLC examination. My aim to become a doctor. Thank you sir. My name is Muhammad Asim. I am from Al Karim School. I have secured 89% in SSLC exam. My goal is to become an engineer. My name is Muhammad Usman Sharif. My score is 87%. I am from Al Karim School. My goal is to become an engineer. पहली बात जो हमारी तवज्जो में आती है वो ये कि हमारे बहुत से बच्चों में इस बात की सलाहियत है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें पब्लिक एग्ज़ाम्स में। आप जिक्र कर रहे थे MESCO हाई स्कूल का। अब देखिए, सिर्फ डिस्टिंक्शन को देखेंगे आप तो इतनी बड़ी तादाद नज़र नहीं आएगी, मगर तवज्जो के काबिल ये बात है कि हमारे ज़्यादा बच्चे एवरेज लेवल के होते हैं। अब इन एवरेज लेवल के बच्चों का रिज़ल्ट देखें आप टोटल, तो 40% बच्चे हाई फर्स्ट क्लास लिए हैं, 40%, और 40% हाई सेकेंड क्लास। तो इसका मतलब यह है कि हम एवरेज बच्चों को ले जाकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं 80% बच्चों से।
तो ये एक नुमायाँ कामयाबी है, एक इम्तियाजी हैसियत हासिल हुई है मेस्को स्कूल को। और इसमें हमारी मदद काफ़ी हद तक स्टेलर एकेडमी की रही है, जिसमें मेस्को स्कूल के टीचर्स के साथ साथ प्रोफेशनल टीचर्स की भी एक टीम थी। उनका अब तक जिक्र नहीं आया, ज़रूरी है कि उसका भी जिक्र कर दें। उनकी एक ईबेस नाम के कुछ ट्यूटोरियल है, कनीज राहिला और उनकी टीम, उनकी काफ़ी मेहनत रही है, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हम एवरेज बच्चों को भी थोड़ी गाइडेंस पहुँचाएं, थोड़ा एकेडमिक उनको सपोर्ट दें, तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग मेस्को के रिज़ल्ट का या मेस्को की तरह की स्कूल का कंपैरिजन मरियम अल्लाह पास सद्विद्या से करते हैं। अब वहाँ देख रहे हैं आप कि डिस्टिंक्शंस की तादाद बहुत बड़ी रहती है। 60-70% बच्चे डिस्टिंक्शन ले रहे हैं, जबकि हमारे सिर्फ 10% ले रहे हैं या उससे भी कम। मगर देखने की बात यह है कि वहाँ जाने वाले बच्चे पहले ही डिस्टिंक्शन लिए हुए रहते हैं। पहले ही डिस्टिंक्शन लिए हुए बच्चों में डिस्टिंक्शन लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एवरेज बच्चों को ले जाके हम डिस्टिंक्शन में लाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप बच्चों से बात कर रहे थे, अब उनसे पूछ रहे थे कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारे एसएलसी के बच्चे आज आईएएस की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस की बात कर रहे हैं और दूसरे इस तरह के टॉप लेवल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ा नुमाया कामयाबी का मुकाम है, बिल्कुल बड़ी नुमाया तब्दीली है। सर, पीयू कॉलेज से एक ऑफर भी दिया गया है 95% अबो जो भी रहेंगे उनको फीस का बिल्कुल माफ, ये बहुत बड़ी बात है सर। बड़ी बात है, मगर एक समझने वाली बात भी ये है कि हमारे जो भी बच्चे आए, टॉप मोस्ट बच्चे 92% के थे बच्चे। आप उनको फ्री कोचिंग ट्यूशन एडमिशन देते तो ये बड़ी बात होती। आप देखे हैं कि 95% की कोई बच्चे नहीं है, बच्चा नहीं है। आप कहें कि 95 को देंगे, ये कोई प्रैक्टिकल वो स्टेप नहीं है। आप कहते कि टॉप लेवल 92 का है, 92 वालों को फ्री कोचिंग फ्री एडमिशन देंगे, तो ये बात एक सही रास्ते में ले जाने की बात होती। तो इन चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है और काम करने वालों को भी सिर्फ बोल देने की बातों से नहीं, एक प्रैक्टिकल स्टेप होता अगर ये कहते कि इस बच्चे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको फ्री एजुकेशन देंगे। जिस तरह मेस्को में ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है पीयूसी के लिए बहुत अच्छे इंतजाम हैं, बहुत अच्छे कैंपस है, उस हिसाब से जो है पिछली मरतबा यानी इस मरतबा पीयूसी का रिजल्ट नतीजे किस तरह के रहे? मैं पीयूसी की बात करने से पहले स्टेलर एकेडमी की एक बात आपकी तवज्जो में लाना चाह रहा हूँ। जी। हमारे कलीम अहमद साहब आपके सामने कह रहे थे कि हमने एवरेज लेवल के बच्चों में एक उम्मीद पैदा की है। इसके मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे स्टेलर एकेडमी में जो कोचिंग हासिल किए उन बच्चों के रिज़ल्ट के बाद रिस्पांस देने का एक प्लेटफॉर्म बनाए। वहाँ पे कई बच्चे अपने रिस्पांस में कहे स्टेलर एकेडमी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी पास हो गया, मैं भी पास हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। ऐसे बच्चे इनकी बातों से जाहिर होता है कि जिनको उम्मीद नहीं थी, एहसास कमतरी के शिकार थे, बिल्कुल थे, उनमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो कर सकेंगे एसएलसी। ऐसे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए और ख़ुद कह रहे हैं, तो ये एक अच्छी कामयाबी है,
कामयाबी की तरफ जो हम कदम उठा रहे हैं उसमें अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेंगे। पीयूसी की बात आप पूछें तो जनरल बात तो यह है कि रिज़ल्ट अच्छा रहा है। मगर कुछ यहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं मेस्को पीयू कॉलेज में। मेस्को पीयू कॉलेज अब तक मेस्को इदारे के ज़ेर निगरानी चल रहा था पिछले 7 साल से। बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे थे, आइंदा की भी उम्मीद है अच्छा रिज़ल्ट देंगे। मगर अब की बार 24 का साल जो है इसकी निगरानी अल मामूर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट ने खुद ली है। अब तक वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट अल मामूर फाइनेंशियल सपोर्ट था, एकेडमिक सारी निगरानी मेस्को की थी। अब खुद जिम्मेदारी लिए हैं। उम्मीद है, दुआ भी है कि वो भी इस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखें और अच्छा रिजल्ट दें। मोहतरम, आज जिस तरह मेस्को के जानिब से जो भी टॉपर्स थे उनकी हिम्मत अफजाई और उनकी हौसला अफजाई की गई है और बाकायदा उनको एक गाइडेंस के तौर पर हिदायत भी दी गई कि क्या लेने से क्या होगा। आज जो प्रोग्राम आप रखे थे उसका क्या मकसद था और यहाँ पर कितने बच्चे शामिल हुए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा स्टेलर लाइट एकेडमी के जानिब से फ़िक्र है कि हमारी कौम के पसमानदा तबक़े के बच्चे जैसा केसरे, बड़ा मकान, गौसा नगर, शांति नगर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी तो कम हालत के बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर हमें तालीमी मियार बढ़ाना चाहते हैं। हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है। वो रैंक लेने वाले रैंक ले लेंदे, MBBS वो डिग्रीज़ बड़े बातें करने वाले बहुत बड़े बातें करते हैं, लेकिन हमारा मकसद है ये बच्चों को जो तालीम से दूर हो जा रही इनको हमें तालीम के लाइन में डालना, ये हम और उनकी तालीम में आगे बढ़ने के लिए मदद करना। वो कहाँ तक जाते हैं हमें अल्लाह बेहतर जानता है, हमें मालूम नहीं, लेकिन ये हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा जान माल वक्त इन बच्चों के पीछे लगे, ये हमारी एक छोटी सी एक फ़िक्र है। सर, जो कॉन्वेंट बहुत दावे करते थे कि हमारे इंस्टीट्यूशन से ऐसा बच्चे होंगे, लेकिन अंकिता जिसको आपने एक रोल मॉडल के तौर पर बच्चों के सामने एक साबित हो गया है कि सर बच्चों के अंदर मेहनत हो तो रेसिडेंशियल स्कूल की बच्ची भी 625 पे 600 रुपये ले सकती है। तो देखने वालों में जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनको क्या पैगाम है? अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें UPSC का, IAS IPS के, उन बच्चों में अक्सर सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, तो बच्चों में टैलेंटेड रहते हैं। घर का माहौल और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस, हालात, इस वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि ज़हीन बच्चे हैं वो, अगर उन बच्चों को थोड़ा भी हमें सपोर्ट दे दिए, ये हमारी कौम के लोग, हम लोग मिलकर उनको अगर आए ऊपर लाना चाहते हैं तो ये क्या भी ज़माने की ज़रूरत नहीं है, 5-10 साल में इनको हमें आगे ला सकते हैं इंशाअल्लाह। सर, इस मरतबा मेस्को में जो SSLC एग्ज़ाम के लिए बच्चे बैठे थे, आपका टोटल कितना परसेंट है? 96%। वो 4% कहाँ आप मिस कर गए? नहीं, 4% बिल्कुल जो बच्चे मंद जहन के बोलते नहीं, वो पढ़ना लिखना भी बहुत मुश्किल है। हम वैसे बच्चों को स्कूल से नहीं काटते, उनको हमें SSLC की तालीम देते हैं। और वो भी आपको पता होना, 2 बच्चे फेल हुए हैं, वो एक बच्चा 3rd लैंग्वेज कन्नड़ा में फेल हुआ है, एक सब्जेक्ट।
और एक बच्चा एक थर्ड लैंग्वेज, एक फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा और एक मैथ्स में शायद, 3 सब्जेक्ट्स में 2 बच्चे फेल, थोड़े थोड़े मार्क्स से। ये बच्चे भी कैपेबल हैं। अब 3 एग्ज़ाम्स का प्रोविज़न है, एक एग्ज़ाम हुआ है और भी 2 एग्ज़ाम्स बाकी हैं, उनमें 2 में ज़्यादा कौन से मार्क्स आएंगे उसे मिल जाएगा वो इंशाल्लाह। वो 100 में शुमार है। हमें कोई फेल्यूर की बात ही नहीं है। अच्छा, अगर 2023 की बात करें तो 24 में क्या फ़र्क आया है? क्या इसमें आपकी जो परसेंटेज है, जो कामयाबी का, उसमें जो है बड़ा इजाफा हो गया है? बहुत बड़ा बच्चों के जहनों के अंदर ये बात है कि हमें कोई केयर करने वाले हैं हमारी कौम में। पहले ऐसी बात नहीं थी कि एक छोटी सी हेल्प जो है बच्चों के जहन को और उनके दिलों को मजबूत कर दिया है कि भी हमें भी पुश करने वाले हैं, हमें भी पकड़ने वाले हैं, हाथ पकड़ने वाले हैं। तो ऐसे अगर इदारे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कौम को, जो हम बोल रहे हैं हमारे कौम पीछे है, कौम को बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। कौन आगे बढ़े हैं ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जो माल है, माल के बुनियाद पर इनका हेल्प करो। जिनके पास डिग्रियाँ हैं, पढ़ लिख कर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लोग आकर 1 घंटा 2 घंटे या 1 दिन वक्त दो इन बच्चों को पढ़ाने में। जिनके पास बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, इन बच्चों को पढ़ाने बिठाने के लिए वो हॉल दें। अपने हाथ से क्या होता खर्च करो, ये आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके इदारे से जो एवरेज बच्चों को सामने लाने की जो कोशिश है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इस कोशिश को और आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो फंक्शन में जो मैं जो तस्वुर किया, 500 बच्चे में हमना 20 और 25 के अंदर बच्चे हमना डिस्टिंक्शन निकले। आज क्या जो भाग दौड़ चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर को बहुत मेहनत करना है। क्यों? ये हमारे बच्चे उन बच्चों के साथ ही मिलके ज़िंदगी करना है, उन बच्चों के साथ ही काम के लिए तलाश करना है। हम ये समझ लिए कि ये बच्चे पास हो गए तो वहाँ जाके ये फेल, उन बच्चों के सामने इनकी कोई औकात नहीं रह सकती। तो इनके लिए बहुत मेहनत करना है। और हमारे इतने फंक्शन में एक बच्चा हो या एक बच्ची हो, कोई सवाल नहीं पूछे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ 1-1.5 या 2 घंटे में कलीम सर जो बोले, तो एक बच्चे में आके पूछने की सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इन बच्चों को सबसे पहले स्कूल में वो हिम्मत लाना है, स्टेज पे आके सवाल पूछे। क्यों? हमारे इदारे में बाहर से भी लोग आते हैं, तो वो पहले वो देखते हैं, बोलने के बाद कौन सा बच्चा सवाल वो समझते हैं कि जो बच्चा पहले सुना है वो पूछ सकता है। जो सवाल नहीं पूछे तो वो क्या सुनते हैं कि ये हमारी स्पीच सुने ही नहीं। तो हमारे बच्चों को मैं समझता हूँ कि थोड़ा वो काबिल बनाए। इस कमी को दूर किया जाए। हाँ, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कम से कम माहाना में एक बार कुछ इस तरह से स्कूलों में प्रोग्राम करें ताकि वो बच्चे सामने आके कुछ बोल सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेस्को में जो बच्चों के वास्ते स्किल अकेडमी के जो बनाने के नाम से जो मैसूर के जो बच्चे हैं, जो पसपंदा गरीबा के, जो मिडिल क्लास के, ऐसे बच्चों के वास्ते एक पूरे मैसूर के जो स्कूल हैं, केसरे के, राजू नगर के, शांति नगर के, बड़े मकान के सब बच्चों को जो ऐसे आदमियों को चुन को इन्हों जो प्रोग्राम करना आपको हमने बोले, हमने बहुत खुशी हुई। हमें तो यश लाइन में काम करना कर को सोचते रहते, खाली करने नहीं हो रहा था, मगर इन्हों सब कर रही सोचे हमें इनके साथ मिल को ऐसा काम एजुकेशन जो बच्चों को बहुत ज़रूरत है SLC और POC के वास्ते, हम इसके बाद इनके साथ काम, इनका साथ देंगे, इनके साथ चढ़ बढ़ को काम करेंगे को हमें सोच को हम इनके साथ देने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।